Namaskar. Hello and welcome to Sunset TV. I am Namrata Singh and you are watching Question Hour. The show focuses on questions raised by members in both houses of parliament concerning matters of national interest. In the Rajya Sabha, members from various parties posed questions related to 14 ministries and sought responses from the respective ministers. Similarly, in the Lok Sabha, members from diverse parties raised questions pertaining to 9 ministries and sought responses from the respective ministers. Now, let's take a look at some of the questions whose replies were presented today. Rajya Sabha members Madan Rathore and Darshana Singh asked the Minister of Youth Affairs and Sports measures taken by the government to promote youth participation and development across the country by effective utilization of its growing user base of the Mera Yuva Bharat portal, and special programs or opportunities to be launched keeping in mind the diverse interests and skill sets of the youth registered on the portal. The ministry in its reply informed the House that Mera Yuva Bharat portal promotes youth participation and development across the country. Features of the portal include Volunteer for Bharat connects youth with short-term community volunteer opportunities. Experiential learning programs offers youth opportunities to gain practical experience through extended field-based projects. Mera Yuva Bharat organizations, collaboration with government organizations, knowledge institutions, non-profits and community-based organizations to list opportunities and improve youth outreach. Public profiles allows youth to create searchable profiles and showcase their achievement. CV Builder provides a customizable CV Builder tool to help youth create impactful resumes. Mega Events enables multiple MBOs to organize large-scale youth events and activities. Since its inception, Mera Yuva Bharat has constantly engaged Mera Yuva Bharat volunteers in different activities as per their diverse interest and skill sets. Activities include ELP in hospitals, post offices, community policing, volunteer for Swachhta traffic management, workshops on financial literacy, etc. Lok Sabha members Rajkumar Chahar and Naveen Jindal asked the Minister of Road Transport and Highways whether government has implemented or formulated any scheme for cashless treatment of road accident victims mandated by Section 162 of Motor Vehicles Act 1988. The time by which it is expected to be implemented nationwide, government's experiences and key takeaways from cashless treatment schemes in Chandigarh and Assam, and whether government is aware that cap of 1.5 lakh rupees and 1 week limit for cashless treatment may be inadequate for severely injured victims. माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में
इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि हमने हर संसद सदस्य के अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरते हैं, ना दंगों में मरते हैं, 1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए। पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उस पर। आप दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें, कई सदस्य की मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके ज़िले में ये एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं, उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है, मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। Rajya Sabha member Sulata Deo asked the Minister of Tourism whether government has any proposals or sanctioned projects to boost ecotourism in the country and whether government has received proposals from various state governments for the development and promotion of ecotourism. The ministry in its reply informed the House that development and promotion of tourism in the country is primarily done by the concerned state governments or union territory administrations. The Ministry of Tourism complements the efforts of state governments and union territories by providing financial assistance to them under its Swadesh Darshan and Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive for development of tourism amenities on receipt of projects proposals from state governments or union territories in line with the relevant scheme guidelines, availability of funds under relevant schemes, etc. Under the central sector schemes of the Ministry of Tourism, projects are strategically selected based on the state perspective plan or submitted by the state governments or union territory administrations, which analyzes the tourism potential of various destinations. The criteria include information provided by the state governments or union territory administrations in their destination master plan and detailed project report regarding major tourism attractions, existing tourism ecosystems, connectivity by air, rail and road, and the destination's future tourism potential. Priority is given to destinations that align with the scheme's objectives of promoting sustainable and responsible tourism, including ecotourism, enhancing local economies and fostering community participation. Under the Swadesh Darshan scheme, the ministry sanctioned 76 projects in the country, including 6 ecotourism projects for over 415 crore rupees. The ministry has now revamped the Swadesh Darshan scheme as Swadesh Darshan 2.0 with the objective to develop sustainable and responsible tourism destinations and has sanctioned 34 projects in the country. Ministry of Tourism, under its another central sector scheme of assistance to central agencies, has sanctioned 40 projects in the country. Further, Government of India received project proposals from the state governments under the Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-25 and sanctioned 40 projects in the country, including 2 projects in Odisha. The details of the project sanctioned in Swadesh Darshan, Prashad SD 2.0, assistance to central agencies and SASCI in the country, including Odisha, are annexed. Lok Sabha MP Lalji Verma asked the Minister of Power details of funds for rehabilitation and
resettlement and corporate social responsibility utilized by the National Thermal Power Corporation located at Tanda in Ambedkar Nagar district of Uttar Pradesh from 1st November 2022 to 31st October 2024 on various works. And whether NTPC distributed scooties using the said fund. The details of funds of rehabilitation, resettlement और CSR, तो इसमें हमने जो पूरा फंड वहाँ दिया गया है RR सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट में 2,76,00,000 रुपए इसको लागत की गई है और CSR के अंतर्गत 7,10,00,000 रुपए की लागत की गई है। तो दोनों की ये डिटेल दी गई है। जहाँ तक डिटेल ऑफ वर्क की बात है, इसमें इन सभी वर्षों का 21-22 में 8 प्रोजेक्ट्स उनके नाम दिए गए हैं, 22-23 इसमें 21 प्रोजेक्ट्स इनके नाम दिए गए हैं, 23-24 इसमें 26 प्रोजेक्ट्स इसमें सब नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक एक प्रोजेक्ट के नाम की डिटेल ये माने सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दी गई। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में किया गया है और इसमें बहुत विस्तार से सारा सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कंपनी जिसका वर्ष के अंदर 500 करोड़ रुपया या इससे अधिक टर्नओवर होगा अथवा जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया लेकिन टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपया होगा, प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे अधिक होगा, तो ऐसे कंपनी को एक अपनी CSR कमेटी बनानी होगी और वो CSR कमेटी उसके प्रावधान दिए गए हैं अंडर शेड्यूल 7 जिसमें 12 तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है और वो कमेटी बैठ के तय करेगी कि इसमें से किस किस एक्टिविटी की जो डिमांड आई हुई है उस डिमांड के आधार पर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। इस खास करके जिस प्रश्न की बात की जा रही है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो NTPC की प्रावधान उस कमेटी ने बनाए हैं उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिमांड आएगी उसको भी कंसल्ट किया जा सकता है, पंचायतों से डिमांड आएगी उसको किया जा सकता है, उनके अपने सर्वे हैं उसमें भी किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो भी की जा सकती हैं। ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एक पत्र लिखा जिसमें ये कहा गया कि ऐसे इस क्षेत्र के अंदर 25 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दे दी जाए, उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। जहाँ तक इसकी डेट की बात है कि किस डेट को दिया गया और चुनाव के समय दिया गया, पहली बात तो जानकारी ये है कि चुनाव के बाद का सारा विषय है क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये सितंबर में समाप्त होता है, ये अक्टूबर के अंदर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। 1 अक्टूबर 24 की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पत्र दिया गया है। अगली बात बैठिए, अगली बात अगर किसी प्रकार का कोई चुनाव से जुड़ा विषय है तो चुनाव का जुड़ा विषय हमारे सदस्य महोदय ये विषय चुनाव आयोग का होता है। इनको किसी प्रकार का वहाँ कोई उल्लंघन लगता है कि चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत ये हुआ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए और उसमें कोई ना कोई इनको एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सब उसके बाद के विषय है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे एक से इसमें कुल मिलाकर अगर इस प्रकार से इन 28 जो सूची दी गई है, ये 28 स्कूटी जो दी गई है, इन 28 स्कूटी का पूरा विवरण दिया गया है कि किस किस परिवार को किस किस महिला को दिया गया है और महिलाओं का सशक्तिकरण वो उसमें प्रावधान दिया है। हम एक तरफ तो लखपति दीदी की बात करते हैं, एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक 28 स्कूटी अगर ऐसे गरीब परिवारों में ऐसे परिवारों में दे दी जाती है तो हमारे सदस्य महोदय को इसका आपत्ति होती है, मुझे समझ से परा लगता है। Lok Sabha members Om Prakash, Bhupal Singh and Sanjay Haribhau Jadhav asked the Minister of Road Transport and Highways whether a number of national highways projects have been identified across country for completion in 2024, number of pending projects to be completed in the country, particularly in Maharashtra and Uttar Pradesh, and names of the states where problem of land acquisition is being faced in completion of national highway projects timely.
कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते हैं वहाँ से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते, 18 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू हुआ है। वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की, अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है। और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोड़ टनल आती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट, उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है ये सूरत जाता है। अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे उनको मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाना पड़ता था, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं। अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को। तो अध्यक्ष महाराज, ये जो पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम कर रहा है। यानी ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है। उसमें इनका धाराशिव, उस्मानाबाद आता है और उसको स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है। उनकी मांग है, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। Well, that is all I have for you in this edition of Question Hour. Stay tuned and thank you for watching Sansad TV.